to morning, all. everyone. Good Good morning. morning. Happy Good Diwali, morning. beta. Good Poonam, beta. morning, Happy Happy everyone. Diwali, Diwali. Poonam. Good Happy morning. Diwali. Good Good morning. A Very, morning. happy very Good Diwali. happy, morning. beautiful day to all. Thank Yeah. you. Hi, Same to Dipti. Good you. morning. Hi, good morning. Morning. Good Wish you morning. all Very, a very very Good happy happy morning, beta. Happy Good Diwali. morning. Diwali. Happy Good morning, Diwali. ma'am. Also to the family here and to all the people who are listening to us on the YouTube, from all of us, wish you a very happy Diwali. Same to And Good you. morning The to same. all. Happy Deepavali to everyone. Happy Happy I'm Diwali. calling Diwali from to all. Bangalore. Yes. Vijay sir, namaste. Happy Diwali. Namaste. Happy Diwali to you also Happy and Diwali, everybody. ma'am. Thank you. Happy Happy Diwali. Happy Diwali to Diwali. everyone. The Happy most Diwali. prosperous and Everyone, happy yes. Diwali. Deepti. So much of happiness in the morning. So today is also a day. Yeah. So we always have to derive something from the festival. So हमारे जो Indian festivals and Indian culture, firstly, that after 14 years, Ram ji and Lakshman ji came after, 14 years of exile back to बंद कर the दो. parents, Ayodhya. Yeah. And it also connotates that today is a new moon day. अमावस्या बोलते हैं इसको हिंदी में, जब पिच डार्क सबसे सबसे डार्क दिन होता है आज वैसे, तो उसमें इल्यूमिनेट करना, दियों से सजाना, बहुत सारी रोशनी करना, लाइट करना, सेलिब्रेट करना, खुशियां मनाना, दैट इज व्हाट इट इज. नो मैटर हाउ डार्क द टाइम्स आर, okay, we can always illuminate it. So today is a day when our lives are going to be illuminated. We have to illuminate ourselves. दूसरी चीज है कि लक्ष्मी जी का दिन होता है ये. Lakshmi ji connotates wealth, prosperity, abundance. So today, as much as we can write, let us all try and write a lot of gratitude for money. I have done my bit. I have really thanked all the money and, like all my debit cards and credit cards separately, ek, that thank you universe for so and so banks that holds my money so safely and also multiplies it, है ना, interest भी देते हैं वो लोग सेविंग्स अकाउंट में रखने के लिए. सो थैंक यू यूनिवर्स फॉर this credit card that always allows me free payments and paying them back is so easy. So that way, thank you to the Google Pay that gives us the freedom to pay whenever we want and, to absolutely go cashless, isn't it? Even if you go out with a phone and, you enter a mall, you can buy anything because you have Google Pay. This is the kind of freedom. पहले ये होता था कि कैश पैसे चाहिए होते थे हमेशा, ATM भागो, ये करो, वो करो. Now even the vegetable vendors have got Google Pay. So suppose you're not carrying money और आप उस intention से नहीं निकले थे. Like it happens sometimes when I go running, तो मुझे लगता है कि let me take a kilo of papaya and go back, because there are always fruit sellers around. So it's just that as long as I have the phone, I have freedom to shop anything. है ना. देन मनी एंड वेल्थ एंड अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, जिस घर में रहते हैं, जो लग्जरीज हमारे घर में हैं, उन सब के लिए, like anything that comes that Lakshmi ji has blessed us with. So I think Lakshmi ji is blessing us a lot. Like all of us are being blessed by the goddess Lakshmi. Lakshmi ji's hands are always on us. और लक्ष्मी जी उसी घर में आती हैं जहाँ पे खुशियों की बारिश पहले से होती है और सफाई होती है. ऐसा ही हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. तो आज वो वैसा ही दिन करना है कि खूब खुशी है तभी लक्ष्मी जी आती हैं. मनी इज अ फ्रीक्वेंसी. लक्ष्मी जी कम्स एट अ प्लेस व्हेन वी आर इन अ हाई फ्रीक्वेंसी. सो आज हम इतना थैंक यू कर दे लक्ष्मी जी को कि उनके पास चॉइस ही नहीं रह जाए वेदर शी कम्स टू आवर हाउस और नॉट. उनको आना ही पड़ेगा. हम ड्रैग करके लाएंगे अपने थैंक यू से, बिकॉज वो एनर्जी ऐसी होती है मैग्नेटिक. तो ड्रैग करके लाना मतलब उनको मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू अपने घर में लेके आना, अपनी लाइफ में लेके आना. दैट इज व्हाट वी नीड टू डू, है ना. सो आज बहुत सारा थैंक यू हमें अपनी वेल्थ, अपनी प्रॉपर्टीज के लिए, द हाउस, पीपल हु आर इन अ रेंटेड अकोमोडेशन, जो हर महीने रेंट दे रहे हैं, अपने लैंडलॉर्ड के लिए कि वो इतनी कंफर्टेबली हमको रहने दे रहा है, to everything that we get with money, to the beautiful clothes also we wear is लक्ष्मी जी सेवा कर रही है हमारी. isn't it? मतलब पूरी लाइफ लक्ष्मी जी ने ही हमारी सेवा की है. तो अब हमारा टर्न है कि हम उनको थैंक यू बोले. एंड दैट इज व्हाट दिस डे इज ऑल अबाउट. Of course, it's about happiness and laughter and good food or whatever. So yeah, I think more than good food, हमारे यहाँ तो बहुत ही fixed food बनता है इस दिन. लौकी चने की दाल और pumpkin की सब्जी और पूरी और बूंदी रायता. So it has been fixed for so many years. So this is like a standard खाना which is so healthy.
So but that is what we cook. So yeah, the cook would be cooking that. So it will not be like mithaiyan khana and all that, but hum yahi khana khate hain. I have my rice with लौकी चने की दाल, अच्छा तड़का की हुई हींग का, so that is what it is. So yes, eat a lot, but eat in moderation. Our body is ours, revere it, respect it. Let's not punish our bodies, है ना? So control में खाना खाना ये बहुत जरूरी है. Nuts and seeds खाओ अच्छे से, बहुत सारे nuts and seeds खाते हैं हम लोग आज के दिन, बहुत आते भी हैं गिफ्ट्स में, जाते भी हैं, है ना? सो वो सारी चीजें, तो बस आज के दिन से ऑनवर्ड्स हमको यही ध्यान रखना है कि कितनी भी बड़ी अमावस्या हो हमारी जिंदगी में, तो हमको हमेशा उसको इल्यूमिनेट करने की कैपेसिटी हमारे अंदर है, और कितनी भी हार्श सिचुएशन है उसको टर्न अराउंड करना थैंक यू और लव के हेल्प से बहुत आसान होता है. ठीक है, no matter how harsh it is, and then we are all together, giving energy to each other. So it is as simple as that. Okay, any one of the guidances we can pick up and we can make it our guiding force or that guiding light, है ना? जैसे लाइट हाउस गोवा में, तो वो हम देखते हैं ना हमेशा, वो रात को लाइट दिखाता है टू द शिप दैट इज पासिंग अक्रॉस दैट ओशन. तो जो लाइट हाउसेस कहीं पे भी जब पीस ऑफ लैंड होता है वहां पे बने हुए होते हैं. सो लाइट हाउस, वो जो शिप आ रही है पता नहीं कहाँ से, जब पैसेंजर शिप थी या कार्गो शिप्स होती हैं, तो वो बहुत दूर तक उसकी लाइट जाती है और उसको लाइट दिखाता रहता है और शिप उस लाइट को फॉलो करती है. सो दैट बिकम्स लाइक अ कंपास फॉर देम, दैट दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड दैट देयर इज लैंड अराउंड. So similarly, we are our own guiding light. We have to be that source of that guiding light. And when we are in bliss, gratitude. In fact, आज का जो हीरो बुक है उसमें हम bliss के बारे में बहुत सारा पढ़ेंगे. आज का टॉपिक ही वही होगा. So yes, let's start. आज का beautiful chapter, day number 12. और कितना बढ़िया है कि दिन और chapter हमारे साथ में चल रहे हैं. The date is 12 and the chapter is 12. Yesterday the date was 11 and the chapter was 11. So that means we are in the right track in the universe. I mean, there are no coincidences in life. Everything is happening for a reason. Okay, so how our numbers, our days and our chapters are in alignment, whereas we have never timed them. We have never thought that okay इसको जल्दी करो ताकि first day first वाला chapter हो. हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था. ठीक है, ये अपने आप हो रहा है. This is the game the universe is playing with us and telling us that you guys are on the right path. You are in tandem or alignment with the universe. So on 12th of November, we do chapter number 12. So Dishant, you're reading for us. Good morning. Yes, ma'am. Good morning. Good morning. अच्छे से नींद खुल गई आपकी? Almost, ma'am. Yeah. Almost. This is humility. Okay. So वो पढ़ के अभी खुल जाएगी. जब भी पीठ सीधी करके बैठते हैं और पानी पीते हैं, ठीक है, then you become active. So here we have an album जो ये signify कर रहा है. आज का chapter का नाम है Magical People Who Make a Difference. So people in our life who have really helped us, pushed us, guided us, made our life easier, हमको रास्ता मिला है, उन्होंने कभी ऐसे मोमेंट पे हमको कोई एडवाइस दी है जिस पे चल के we have been super successful, और हम उस टाइम बहुत confused थे. Anyone, could be a random person, maybe you just met only once in your lifetime, but उसने कुछ रास्ता दिखाया, कुछ बात बताई या कुछ एडवाइस दी, उसको फॉलो करके you have been on another road where you are today and you benefited a lot from that. ये वाला वो चैप्टर है. इसमें एल्बम में 3 लोग हैं. There are 3 people you can see, और बहुत सारा gratitude उन तीनों लोगों को दिया हुआ है. So that's what today we also have to figure out who are those 3 people without whom we would not have been who we are today. मतलब वो 3 लोग जिनके बिना हम वहां पे नहीं होंगे अपनी जिंदगी में जहां पे हम हैं अभी. वो 3 लोग जो जिन्होंने हमें प्रोपेल किया है, जो इंस्ट्रूमेंटल है हमारी जिंदगी में एक बदलाव लाने के लिए, या एडवाइस के थ्रू फिजिकली उन्होंने हेल्प की है, पैसे से हेल्प की है, या कैसे एनकरेजमेंट दिया है बहुत सारा, तो किसी भी तरीके से. सो दैट्स व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट. सो वी जस्ट गो बैक टू इट. हाँ जी, प्लीज स्टार्ट रीडिंग. Good morning. Day 12,
magical people who made a difference. At times, our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. I unquote. Albert Schweitzer, Nobel Peace Prize winning medical missionary and philosopher. Every one of us has received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it the most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on, and we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future. When you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. The person may have been a teacher or a coach, an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner or to a particular interest that became one of your greatest passions. Maybe there was someone you didn't even know, and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside. By sharing her love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years, and my love of books eventually led to me becoming a writer. And my love of the countryside has influenced where I've lived throughout my life. My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave me. She's not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. Today, you're going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone sometime during the day today. Sit down and think of three extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your three people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reasons why you are grateful to them and how they affected the course of your life. Make sure you do this magical practice with all three people in the one session, because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude nor receive the magical results. Here's an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart.
I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dreams. And I moved to France to work as an apprentice chef. I'm living my dream and I couldn't be happier. All because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. It's very important that you say the reasons why you are grateful. And you can't say too much. Instead, the more you say and the more you feel, the more amazing the results are. You will see the magic explode into your life from doing this practice. It numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. If you're not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you are writing a letter. When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first and foremost, it makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. And as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. Magic practice number 12. Magical people who made a difference. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Find a quiet place alone sometime during today and make a list of 3 people who made a difference in your life. Work through the list one person at a time. And while talking out loud, tell each person the reason why you're grateful for them and exactly how they affected the course of your life. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Dishant. Now keep sitting straight and drink a lot of water. So that will make you awake. So here about this, it's such a beautiful practice, no, to do today, that we are thinking back. अपने बारे में नहीं सोच रहे सिर्फ, and we are thinking about the people जिनकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत happiness आई है, जिन्होंने हमको रास्ता दिखाया. मतलब पहला वाला, I'll just take you through the quote that was there written as the first quote that we always do in the chapter. It's so beautiful. It says that sometimes, you know, our own light goes out, है ना, हमारी जिंदगी की बत्ती बुझने लग जाती है कभी कभी. हम इतने लो जोन में चले जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि आगे का रास्ता क्या है, क्या होना चाहिए, अब क्या करें, किस डायरेक्शन में जाएं, किसका हाथ पकड़ें, क्या हमारा कंडक्ट हो, हम ये करें कि नहीं करें, कैसे हम आगे बढ़ें. एंड देन सडनली कोई आता है हमारी जिंदगी में और दोबारा से वो स्पार्क जो हमारी जिंदगी में वो रिकिंडल हो जाता है, वो बत्ती दोबारा जला देता है ना. मतलब एक ऐसा लगता है कि बस वो कैंडल बुझ रही है और किसी और ने आके हमारी लाइफ की कैंडल को ऑन कर दिया, जला दिया. एंड इसलिए
each one of us has a cause to think with deep gratitude जिन लोगों ने हमारे अंदर की लाइट को ऑन करके रखा हुआ है और हमारी जिंदगी में इल्यूमिनेशन बढ़ता जा रहा है। वैसे भी आज का दिन इल्यूमिनेशन का ही दिन है ना? हर जगह ही रोशनी रोशनी नजर आ रही है। आप मार्केट में जाओगे वहां पे भी रोशनी है। आप ऐसे ही अपने जो अपार्टमेंट्स हैं, अपनी कॉलोनीज हैं, वहां पे भी बहुत सारी रोशनी है। लोगों के घर के सामने इस वक्त भी व्हेन आई कैन सी आउट, लोगों के घर में रोशनी है। मेरे घर के भी बालकनी में रोशनी जल रही है। तो मतलब हर जगह इल्यूमिनेशन का ही दिन है आज। तो इल्यूमिनेट करके हमको अपनी जिंदगी को रखना चाहिए, है ना? और आज से ये डिटर्मिनेशन लेना चाहिए दैट नो मैटर हाउ मच अमावस्या हैपेंस टू अस, है ना? इट इज नॉट कॉल्ड नो मून, इट इज कॉल्ड अ न्यू मून। अमावस्या को नो मून नहीं बोलते ना, मून नहीं होता है आज, मतलब बहुत ही मिनिमम, बिल्कुल काली अंधेरी रात होती है। इट इज वन ऑफ द डार्केस्ट नाइट्स, और उसमें हम रोशनी जलाते हैं, तो वो हम खुद जलाते हैं, है ना? क्योंकि अंधेरा होता है बाहर। तो इस तरह हमारी जिंदगी में, and human beings are social animals, it's not that हम ही, मतलब there are others who are always helping us suddenly। मतलब वो कहते हैं ना कि भगवान भी किसी रूप में आते हैं, इंसान के रूप में आते हैं आपको हेल्प करने के लिए। whenever you are in your lowest ebb and someone comes and you know they light up your life, तो वो भगवान के ही तो फरिश्ते होते हैं ना। जैसे आप लोग भी तो हो ना किसी और के लिए, isn't it? आप लोगों ने कितने लोगों की जिंदगी बदली है, each of you, right? Like we see Dishant, उन्होंने अपनी पार्टनर को, अपनी मम्मा को बताया ना कि ये सेशंस होते हैं, तो उनकी लाइफ भी तो चेंज हो रही है। तो उन्होंने उनकी फ्लेम लाइट की, उनकी जिंदगी की, एंड लाइफ इज देन never the same again. So in different ways people have come to our life. It just could be, I always share with you wherever this chapter comes. So it was my doctor. I had passed away so many years ago, you know that. And it was the doctor who came at 1:30 a.m. in the night and she did my surgery जब मेरा blood pressure, I think my pulse was 20, जिसमें उनको पता था कि मैं बचूंगी नहीं अगर उन्होंने ऑपरेशन किया। लेकिन वो एक चांस तो था ना कि ठीक है कर ही देते हैं। तो उन्होंने सबसे, मेरे फैमिली मेंबर से लिखवा लिया था कि ये हाई रिस्क सर्जरी है and she might not be saved, but still मेरी जान बचाने के लिए she did that surgery, and such she's almost the owner of that hospital, and she still came at 1:30। उन्होंने अपने असिस्टेंट्स को नहीं बोला कि जाओ, तो वो मेरे लिए तो सेवियर ही थी ना। तो उन्होंने मेरी जान बचाई, मेरी सर्जरी की, और सी लाइफ इज नेवर द सेम अगेन। और ऑफ कोर्स 10 days तो मुझे कुछ याद ही नहीं है, मैं डिलीरियम में थी बिल्कुल, आई वाज इन द आईसीयू, बट आफ्टर दैट व्हेन आई केम आउट एंड एवरीथिंग वाज बैक टू नॉर्मल एंड आई एम हेल्थियर देन बिफोर। और उसके बाद से मेरे ख्याल से मैं कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है ऐसे डॉक्टर के पास जाने की या कुछ ऐसा। सो इस तरह से आज हमको बैठ के सोचना है that who are those people who have made a difference to our life, है ना? तो जैसे मैं फट से याद आता है, एक डॉक्टर थी, दूसरी मेरी मॉम थी, you know, who brought us up and let us do everything that we wanted to do. कभी उन्होंने कोई you know वो वैसे restrictions नहीं लगाए about this thing। बस ये था कि टाइम से घर आ जाना अंधेरा होने के पहले। I think one thing she always said, and it's very funny that even today she says the same thing, even after मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ अभी भी ऐसे ही बोलती हैं कि अंधेरा होने के पहले घर आ जाया करो। Like when I go to her house, even now she says this, that you know I come back, I say मम्मी मैं बड़ी हो गई हूँ, now I can handle myself even if I'm mentoring। So my cutoff time was like 7:30 p.m. unless there was some wedding or something happening। So you know, so she has been a major rock and a pillar in our lives, especially when my dad wasn't there, and then she kind of took charge of educating us, sending us to the best universities, letting us, kept telling that, you know, keep studying, while she had to take up a job, you know, to sustain us. So very harsh for her, and being in the hospitality industry, hotel industry में women के लिए काम करना, but then whatever, like she just, you know, her source of energy was that we thrive and flourish. And we did give that back to her by all three of us, like thriving and flourishing in our work areas and even as human beings. So that is like a gratitude। इस तरह हमको सोचना है कि हमारी जिंदगी में वो 3 लोग कौन थे जिनकी वजह से हम जो हैं आज हैं, ठीक है? और प्रैक्टिस में हमको उनसे ऐसे बात करनी है एज इफ वो हमारे सामने बैठे हैं।
So like I will talk to them, you know, as if they're sitting right in front of me. और मैं डिटेल में उनको बताऊंगी that जैसे डॉक्टर नरिंदर बट्टा जो थी, उनसे अगर मैं बात करूंगी तो उनको बोलूंगी कि डॉक्टर बट्टा, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ बचाने के लिए। उस रात मतलब मुझको पता नहीं था कि कुछ फेटल हो रहा है, मुझे लग रहा था मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे हैमरेज हुआ है और ये कैसे होता है। बट आप इतनी रात को आए मेरे लिए, आप इतने सीनियर डॉक्टर हो, मतलब आपका नाम है और आपकी एज, आई मीन शी वाज ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक मस्ट हैव बीन इन mid-60s दैट टाइम। तो उनके नीचे इतना जूनियर पूरा कैरेवन ऑफ डॉक्टर्स काम करता था, बट स्टिल आप मेरे लिए आए और आपने मेरी इतनी हाई रिस्क सर्जरी करी, जबकि आपने परवाह नहीं करी कि आगे यू नो लाइक कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो जाते, या कोई आपको बोलता कि आपने इतनी हाई रिस्क सर्जरी क्यों करी। कोई 20 की पल्स में, 10 की पल्स हो रही थी, 10-20, उसमें भी आपने किया। और मुझे बाद में पता लगा कि वो आप सबसे ज्यादा टेंशन में थे, क्योंकि आपको मेरी जान बचानी थी उस टाइम। एंड आपने किया। उसके बाद आपने 10 दिन तक आईसीयू में, मुझे होश नहीं था, आपने इतने अच्छे से मुझे अपनी टीम के साथ में मेरा इतना अच्छा ध्यान रखा। और उसके बाद यू नो तो मेरी जिंदगी बचाने के लिए बहुत सारा थैंक यू। और इतनी स्किल आप में है दैट आप इतनी मेजर सर्जरी आपने इतनी आराम से कर दी, मतलब 2-3 घंटे में आई थिंक वो हो गई थी। और उसके बाद लगातार आप मेरी मतलब शी रिमेम्बर्ड मी, यू नो लाइक, तो लगातार आपने मुझको याद रखा। और कभी भी मेरी फैमिली से कोई ज्यादा था आपके पास या कुछ, तो आप हमेशा उनसे मेरा हाल चाल पूछते थे। So thank you, Dr. Bhatta, for that, and you know, helping me through all this and guiding me, and you know, taking such a wonderful care for me, not thinking about, not having an ego that why should I go, I can send all the senior doctors, but you came yourself. I think आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं थे और आपने मेरी जान बचाई। So thank you, Dr. Bhatta. This is how I have to talk. ठीक है, ये प्रैक्टिस है, ये एक ऐसे हमको तीनों लोगों के साथ करना है। एंड दिस प्रैक्टिस इज नॉट टू बी डन इन द मॉर्निंग ओनली, आप किसी भी टाइम कर सकते हो। एक ही बार करनी है ये वाली प्रैक्टिस, और तीनों का सिंगल शॉट में करना पड़ेगा। अब जैसे हमने फर्स्ट पर्सन का किया, अब हम सेकेंड पर्सन का करेंगे, उसके बाद हम थर्ड पर्सन का करेंगे इन अ सिंगल शॉट। Okay, we don't have to take a break in talking out loud to each person, और talking out loud करना है हमको आज, जोर से बोल के करनी है ये वाली प्रैक्टिस, है ना। क्योंकि आउट लाउड बोलने में आपकी स्किन एब्जॉर्ब करती है, आपके कान सुन रहे होते हैं और इमेजरीज फॉर्म हो रही होती है। जैसे मैंने आपको जब उनके बारे में बताया तो मुझे पूरा वो सीन रिक्रिएट हो गया। सो इट इज लाइक दैट। सो जब आप किसी और पर्सन के बारे में भी बोलोगे तो वो पूरा सीन इमेजरीज क्रिएट होती है, और इमेजरीज जब ग्रैटिट्यूड के साथ मिक्स होती है तो वो सबकॉन्शियस माइंड में सेटल होके दे स्टार्ट एक्सर्टिंग एन इन्फ्लुएंस इन द आउटर वर्ल्ड। सो योर इनर वर्ल्ड इज ऑलवेज एक्सर्टिंग एन इन्फ्लुएंस इन द आउटर वर्ल्ड, isn't it? And that is what we need to do today. तीन लोग चूज करने हैं। तो आज की प्रैक्टिस में हमको 3 नाम लिखने हैं और फिर उनसे आउट लाउड बात करनी है। बट रॉन्डा बर्न ने ये ऑप्शन दिया हुआ है दैट अगर आप आउट लाउड बोलने की पोजीशन में नहीं हो पूरे दिन, एंड you're surrounded by a lot of people, then doesn't matter, you can also write it as if you're writing a letter to them. Okay, so इस तरह से एग्जाम्पल उन्होंने दिया ही है। वो सारा को वो पर्सन जो भी था वो बोल रहा था दैट सारा, मैं उस दिन बिल्कुल लॉस था जब मैं आपके पास आया, और आपने मुझको पुश किया कि अपनी ड्रीम्स को परस्यू करो और फ्रांस चले जाओ। और ये बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लिए कि मैंने आपके कहने पे आई वेंट टू फ्रांस, और वहां मैंने एज एन अप्रेंटिस शेफ, अप्रेंटिस मीन्स ट्रेनिंग, सो मैंने ट्रेनिंग शेफ की तरफ फ्रांस में ज्वाइन किया, और उसके बाद से मेरी जिंदगी एकदम बदल गई है। एंड फाइनली मेरा जो सपना था, आज मैं वो सपना अपना पूरा कर पाया हूँ आपकी वजह से सारा। अगर आपने मुझे उस दिन बोल के एनकरेज नहीं करा होता तो मैं नहीं आता फ्रांस। एंड थैंक यू सारा फॉर बीइंग दैट फोर्स एंड गाइडिंग लाइट इन माय लाइफ। तो इस तरह इस बुक में लिखा हुआ है। तो जो भी वो पर्सन था, हो सकता है उसने अपना बहुत बड़ा होटल या रेस्टोरेंट खोल लिया, लेकिन वो उस दिन को याद कर रहा है कि जब उसको हिम्मत नहीं हो रही थी अपनी कंट्री छोड़ के किसी और देश में जाने की, लेकिन उसको पैशन था। सो वो फिर आया और किस तरह उसकी लाइफ बदल गई। और सारा के कहने पे, जो भी सारा उनकी फ्रेंड होंगी, उनकी बहन होंगी, या जो भी है ना, सो उनके कहने पे आया। सो दिस इज हाउ वी हैव टू रिमेम्बर दोज 3 people in our lives who's made
who've made a major difference. They just could have given us that happiness and joy, just that. Even that makes a difference, you know. If there is anyone in our life जो हमेशा हमारे चेहरे पे स्माइल दे, हमेशा हमको सपोर्ट करे, हमको हंसाए, हम जब सैड हो तो वो एकदम से यू नो लाइक उनके बारे में सोच के हमको हैप्पीनेस आ जाए, या अगर आप उनको फोन भी करते हो, दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. सो इट कुड बी इवन दोज पीपल, बिकॉज हैप्पी रहना अपने आप में एक आर्ट है. और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मैनिफेस्टिंग आर्ट यही होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी में जब होते हो तो सब कुछ अट्रैक्ट करने लग जाते हो, इजंट इट? हाई फ्रीक्वेंसी में जब हम होते हैं तो सब कुछ अट्रैक्ट, वी बिकम अ मैग्नेट टू हैप्पी थिंग्स, हैप्पी सिचुएशंस, हैप्पी सर्कमस्टांसेस, हैप्पी पीपल. That is what we've always learned in all these books. So it is only about elevating your frequency and being in happier zone. There's so many people जिनके साथ आप बहुत खुश, मस्त, happy, हमेशा joyful, smiling ऐसे रहते हो, है ना? So वो लोग भी हो सकते हैं. तो अपना बैठ के सोचना पड़ेगा. और अगर आपने पिछली बार किसी का कर लिया है या बार बार कर रहे हो, तो इस बार आप लोग चेंज करके कर सकते हो. ठीक है? I can also think about the person who taught me how to drive. I'm like, my driving skill has taken me, it has given me so much freedom and independence. मतलब जो मैं कार्स खरीदती आ रही हूँ एक के बाद एक, like you know, so एक गाड़ी खरीदती हूँ, फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद मुझे लगता है no, why not buy another car, because इतने नए नए टेक्नोलॉजी फीचर्स आ जाते हैं. वो इसीलिए कर पाती हूँ ना, because I have the skill of driving. And ever since I was 14 year old, I have been driving. मैं बहुत दूर दूर अलग अलग जगह पे गई हूँ. मैंने पहाड़ों पे ड्राइव किया है, हाई रिस्क ड्राइविंग करी है, यू नो लाइक बिल्कुल ही जैसे वो रानी खेत में जब जाते हैं यू नो हिमालयस पे, तो एक कच्ची सी रोड है जो बिल्कुल ही उस साइड पे वैली है, आप दिखते हो नीचे, और बस एक ही जा सकता है उसमें. वो 2-way रोड है, इट्स नॉट इवन 1-way रोड. तो उसमें से उधर से बस आ रही है, इधर बिल्कुल स्टीप वैली है. ऐसे ऐसे ड्राइविंग की हुई है, यू नो, जो बिल्कुल ही मतलब हाई रिस्क ड्राइविंग जो होती है. एंड आई हैव सेल्ड थ्रू, नेवर हैड एनी दिस थिंग, यू नो, लाइक इट वाज ऑलवेज विद 100% सेफ्टी. So that is the kind of driving skill I have. It's only because of that one person, my dad's driver, who taught me how to drive. और वो क्योंकि डैड तो मेरे सरकारी ऑफिसर थे, तो वो उनका ड्राइवर था. तो वो आके मेरे डैड ऑफिस से आते थे, फिर वो अपनी फैमिली, सो मेरे डैड के घर के पीछे, मतलब हम लोग तो उदयपुर में रहते थे मॉम के साथ में, तो पापा वाज इन अ ट्रांसफरेबल जॉब. So after some time we stopped moving with him, you know, because school और college बार relocate करना पड़ता था. तो हम एक जगह रहते थे, बट जैसे कोई 2 दिन की भी छुट्टी होती थी तो हम चले जाते थे पापा के पास रहने. तो पापा के घर के पीछे मतलब बहुत सारे सर्वेंट क्वार्टर्स होते थे, खूब सारे इन अ रो. सो उसमें वो ड्राइवर रहता था, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, और वो आके ही वुड यू नो कम एंड टीच मी ड्राइविंग. और इतने पेशेंटली, मतलब मैंने इतना ठोका पीटी किया है ना अपनी कार को, but he was so patient with me. I mean, he would just take me on a railway track and say that बार इसको क्रॉस करने की कोशिश करो. तो उस तरह से किसी ने मुझे सिखाया, और रोज उसको भी तो मन करता होगा कि वो शाम को वापस आया है अपनी फैमिली के साथ, बट 1-1.5 घंटा इतनी शिद्दत से वो मुझको गाड़ी सिखाता था जब तक एकदम अंधेरा नहीं हो जाता था. So that, like, I think I owe that a lot to him. I mean, like, you know, driving is something that gives us a lot of freedom, and that's one thing that which has made me an explorer. So ever since bachpan se I'm Dora the Explorer. Wherever I go on my vacations, I've been Dora the Explorer. I explore small cities, small cafes in middle of the streets, you know, all that, and I love doing that on my travels. Of course मैं उन बड़ी जगहों पे हमेशा जाती हूँ, like जो generally टूरिस्ट ही होती है, but वो गलियों के अंदर घुस के कल्चर देखना, वो सब करना, that's something I'm very good at. That's my interest. So वो एक्सप्लोरर होने की कैपेसिटी मेरी उसी से आई है. यहाँ पे मतलब चांदनी चौक है दिल्ली में, हम सबको पता है. मुझे पता ही नहीं था, मतलब मैंने वो वॉक ली, जो शाहजहानाबाद वॉक बोलते हैं उसको, ठीक है, वो ली. अंदर जाके फिर मैंने मुमताज महल का घर देखा, उनका मकबरा, मतलब बहुत सारी चीजें वहां पे अंदर हैं. ऐसे इतने अच्छे कचौरी आलू के जॉइंट, पॉपुलर वाले तो है ही है, पॉपुलर वाले, लाइक वी नो दैट शाम स्वीट्स और वो सब तो पॉपुलर वाले हैं ना, जहाँ पे तो जाते ही हैं सब लोग. बट ऐसी यू नो लाइक डेजर्ट्स या ऐसी चीजें जाके देखना,
एक्सप्लोर करना उनको, दैट वाज समथिंग, इतने अच्छे अच्छे दुकान जहां से डिजाइनर्स लेते हैं कपड़े, वो वाली जाके दुकानें देखी जो कहीं गली में जाके पतली सी, इट वाज नॉट इवन अ 2 मीटर गली, all those things. So I think I owe so much to the person who taught me to be mobile. So I think my gratitude also goes to Lalit wherever he is, to teach me that driving. So I just drive, I park my car at Red Fort, and then I just walk my walking shoes, and I'm inside the small gully kuchas and discovering things. Even in different cities, I might just drive to any other city close by. How many times I must have gone to Murthal to have parathas. So for people who don't know, when you come to Delhi, you must go to Murthal. It is 45 kilometers away. Beautiful breakfast. White makhan ke saath parathe milte hain. Aur pata nahi kitne tarah ke parathe, you can't even count them on your fingers. So it is like, all those things have come because of that one person. So wherever he is, unko hiccups aa rahi honge abhi, kyunki main unko itna yaad kar rahi hu, to mujhe pata hi nahi, to bahut purani baat hai. Like this, okay? So we have to really sit and remember that small little things, and ho sakta hai recently bhi aap kisi se mile ho who's illuminated your life. Okay, so be it whosoever, चाहे आप 4 दिन पहले मिले हो लेकिन आपको बहुत खुशी मिल रही है और आपको एक डायरेक्शन लाइफ के आगे का मिल गया है, आप उनको भी बोल सकते हो. सो एनीथिंग पास मतलब अभी से 1 मिनट पहले तक या अभी से 1 मोमेंट पहले तक जो कुछ भी हुआ, अगर कोई गाइडेंस, कोई आपको वो मिला है, समथिंग, सम डायरेक्शन इन योर लाइफ, देन योर गेम, यू कैन जस्ट पुट देयर नेम इन द लिस्ट ऑफ द 3 people एंड पे अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड. बोल के करने वाली प्रैक्टिस है आज, लिखने वाली नहीं है. लिखना सेकेंडरी ऑप्शन हमको दिया हुआ है कि अगर इफ यू सराउंडेड बाय टू मेनी पीपल एंड यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू लाइक काइंड ऑफ डू प्रैक्टिस को बैठ के, देन यू कैन डू इट लिख के. अगर बैठ के आप उनसे आउट लाउड बात नहीं कर पा रहे हो तो फिर लिख के कर लो. और लिटरली सामने ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बैठे हुए हो, ये मतलब इमेजिनरी वो है. अज्यूम दैट दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, लाइक दैट. ओके, डोंट गेट देम टू सिट इन फ्रंट ऑफ यू. सो इट इज अज्यूम दैट दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. इस तरह से करना है, लिख के भी करना है, तो वो एकदम से आपकी एनर्जी चेंज होगी. और इसमें रॉन्डा बहन ने बोला है कि आपको एकदम से अंदर से खुशी फील होगी. और ये उन्होंने ये भी लिखा है कि ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिसेस है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत डिफरेंस आएगा. और अगर जिन लोगों ने जो भी हमारे लिए किया है, अगर ये बहुत इजी हो गया है सब कुछ, हमारी लाइफ किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर उनकी वजह से इजी हुई है और हमने उनको आज ग्रैटिट्यूड किया है, तो उसकी वजह से आप देखना कि आप जिंदगी में कभी भी फंसोगे नहीं. देयर विल ऑलवेज बी अ गॉड सेंट एंजल फॉर यू स्टैंडिंग. मतलब ये इतनी पावरफुल प्रैक्टिस होती है. ये नहीं कि ठीक है पास के लिए तो हम कर ही रहे हैं, थैंक यू कि उन लोगों ने हमारी हेल्प की या जो भी है, हमको एक रास्ता दिखाया आगे के लिए. लेकिन अब आगे भी जिंदगी में आप देखना, आप कभी भी अकेले नहीं होगे. जब आपको लगेगा दैट यू आर इन अ फिक्स और यू हैव एन इशू गोइंग ऑन और यू हैव व्हाटएवर एनी काइंड ऑफ एन इम्पेडिमेंट, someone will be there. भगवान का भेजा हुआ angel would be there to support you, lead you, guide you, hold your hand and make it work out for us. Okay, always notice that. So life future also, in the future will not be the same again. अब कभी आप अकेले नहीं होगे, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं क्या करूं, I am in a fix. You will always have a help. Why? Because आपने past के लोगों के लिए thank you बोला. पास्ट एज इन जो भी थे, एज आई मेंशन कि अगर 4 दिन पहले भी किसी ने आपके लिए कोई एनी वर्क, देयर समटाइम्स हम घर खरीदते हैं, so there's someone who just comes and says no I'll help you with it and I'll take you there and I'll do this and everything becomes so easy for us. It could be just that also. Okay, so यही हमारी आज की प्रैक्टिस है कि जिन्होंने भी हमारी लाइफ में किसी भी तरह से हमारी इन मैजिकली चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ फॉर द बेटर किया है, तो उनको हमको थैंक यू बोलना है और उनसे ऐसे बात करनी है जैसे वो हमारे सामने बैठे हुए हैं. हो सकता है वो इस दुनिया में भी नहीं हो अभी, है ना, हो सकता है वो भी इस दुनिया में भी नहीं हो. मे बी दे हैव टेकन अ ट्रांजिशन और वो दूसरा जन्म ले लिया उन्होंने, ठीक है, ये हो सकता है. लेकिन डज नॉट मैटर. इट्स अबाउट ग्रैटिट्यूड, इट्स अबाउट द फीलिंग, दैट इज इट. ओके, सो कोई भी हो सकता है, इसमें लिखा हुआ है, वो आपकी टीचर हो सकती हैं, वो आपके कोच हो सकते हैं, वो आपके अंकल हो सकते हैं, आंट, सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट हो सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं जैसे मेरा है, नर्स हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी, एनीबडी इन योर लाइफ. ओके, सो रॉन्डा बर्न ने अपने बारे में लिखा है, अपनी ग्रैंड मदर के लिए उन्होंने लिखा है.
और ये मेक श्योर यू डू दिस प्रैक्टिस विद ऑल 3 पीपल इन वन सेशन, एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह से करना है, ठीक है, बिकॉज इसी से फीलिंग आएगी. So that is it about the practice. इसमें this is so beautiful. And ये इन्होंने लिखा है कि जितना ज्यादा आप बोलोगे उनको, उतना ही ज्यादा आपकी फीलिंग चेंज होगी एंड उतने ही ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स आपके पास फ्यूचर में आएंगे. एंड यू विल सी द मैजिक एक्सप्लोड, मतलब विस्फोट मैजिक, जादू का विस्फोट होगा आपकी जिंदगी में. और इससे विस्फोटक कोई चीज एक्सप्लोसिव हो नहीं सकती. पटाखे तो हम चलाते नहीं है. कल मैंने बच्चों के ग्रुप में डाल दिया था, जितने लोग भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे, उन बच्चों के, दैट क्रैकर्स को नो बोलना है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे हमको एयर को क्लीन रखने की जरूरत है अभी बहुत ज्यादा, है ना. भगवान ने अपना पार्ट कर दिया है, अब हमारा पार्ट शुरू होता है. सो भगवान ने अपना पार्ट कर दिया है. 2 दिन जम के बारिश किया और बहुत अच्छे से सफाई हो गई. AQI 760 से सीधे फॉल होके 150 हो गया एक ही दिन में. तो ये भगवान जी ने, यूनिवर्स ने हमारी हेल्प कर दी है. अब हमारा कंट्रीब्यूशन है कि हम पटाखे ना जलाएं, है ना. लेकिन अलग अलग तरीके से. तो मैंने जो मैजिक फॉर द फ्यूचर वाला ग्रुप है, जो शाम को क्लासेस होते हैं, मैंने उनको भी बता दिया था. उनको कनेक्ट भी, मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिख दिए थे जिससे कि वो अपने कल्चर से थोड़ा और कनेक्टेड हो जाएं. सो मैंने ये भी लिखा था कि पूजा जैसे कर रहे हैं लक्ष्मी जी की, गणेश जी की आरती, वो उन लोगों को याद होनी चाहिए, तो इसलिए बहुत ध्यान रखें कि किस तरह से पूजा करने की विधि क्या होती है, लाइक डू दैट, रंगोली बनाओ, ये सब थोड़े थोड़े से इनडायरेक्टली उनको टास्क भी दिए. और फिर उनको ये कहा कि ये सब करोगे, सजोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे तो अपनी फोटो भी शेयर करना, रंगोली की फोटो, घर में डेकोरेशन जो किया उसकी फोटो शेयर करो. जस्ट गॉट देम इन्वॉल्व्ड in the Diwali celebration in another way, because बच्चों के लिए ये हो जाता है कि सिर्फ पटाखे चलाने होते हैं उनको, ये that's Diwali for them. So I've given them different tasks, and also the task of sharing their pictures on the group. So I'm sure that they will enjoy it that way. And I've told them not to fire the crackers for today, because I think we need a clean environment and especially safe space for elderlies. इतने सारे लोग, कल भी मैं इतने लोगों से मिली जिनको मैं दिवाली गिफ्ट्स देने गई थी, ऐसे में जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं आसपास जो रहती हैं, उन लोगों को तो सबको वो कोल्ड कॉफ कुछ हो रहा था बिकॉज ऑफ द एयर. सो दैट्स व्हाट दे सेड. Then I thought that, okay, it is a moral responsibility that we don't contribute to the beautiful air which is there, rather say thank you to it and keep it cleaner. So yeah, that's the task. So all of us have to do that today. And we can refrain from using crackers, but rangoli bana sakte hain, kuch khana banana ho to bana sakte hain अच्छा सा अपने हाथ से, इस तरह से. और ये प्रैक्टिस एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है, ठीक है. यही हमारा पटाखा है आज की प्रैक्टिस का पटाखा कि हमको मतलब इतना ग्रैटिट्यूड लाना है कि जादू का विस्फोट हो हमारी जिंदगी में. That magic explodes into our life. We want magic to explode into our life. I think this is such a beautiful affirmation, no? That I'm so thankful, or thank you universe, that magic always explodes in my life, and I just love it, isn't it? It's such an amazing affirmation. So yeah, this is what we need to do. So आज की practice is count your blessings, जो हम कर चुके हैं. नहीं किया तो प्यार से बैठ के आज पैसे के लिए लक्ष्मी जी की सेवा करो. उन्होंने हमारी जिंदगी भर बहुत सेवा करी है और आगे भी करती रहेंगी, है ना. बस हमको थैंक यू बोलना है उनको. तो आज का दिन हम लक्ष्मी जी को, दैट इज मनी, प्रोस्पेरिटी एंड वेल्थ, इन सारी चीजों को जहां जहां पे भी हमको इन रीजन से बहुत ज्यादा फ्रीडम मिली है, उसको हम थैंक यू बोलें. उन सारी चीजों को, है ना. अगर लग्जरीज है घर में जो भी, उनको थैंक यू बोलना, क्योंकि वो लक्ष्मी जी की वजह से ही आई है. तो लक्ष्मी जी वो बेचारी हमारी जिंदगी भर से सेवा करती आ रही हैं, लेकिन हम फिर भी कंप्लेन करते आते हैं. हमने ग्रीड किया है, हमने लक्ष्मी जी के बारे में कुछ बोला है, हमने वरी किया है, हमने एंजाइटी की है. वो कह रही है मैं हूं तो देने के लिए, तुम लोग बस अपनी फ्रीक्वेंसी रेज करो, ग्रैटिट्यूड में रहो, सब मिल जाएगा, छप्पर फाड़ के मिलेगा, है ना. सो आज हम बहुत सारा थैंक यू बोलेंगे, एंड यू विल सी एक एक दिन में कितना डिफरेंस होता है. सो आज काउंट योर ब्लेसिंग्स. जिन्होंने नहीं किया वो लक्ष्मी जी के बारे में करे, पैसे के बारे में करे, बहुत अच्छा होगा. और जो कर चुके हैं काउंट माय ब्लेसिंग्स, वो अब लिखें 100 ब्लेसिंग्स. आज उनका टास्क है ना. आज हमारा टास्क है हमको 100 ब्लेसिंग्स पैसे को लेके, पैसा, गूगल पे, पेटीएम, वो RU पे जो भी होता है,
debit cards, credit cards, luxuries in the house, expenditures that we have made, holidays that we have taken, anything to do with money. Okay, that is what we need to do today. Anything. If there has been a consistent money coming every month in your house, say thank you. It's about expensive clothes and shoes जो आपको लग रहा था कि budget के बाहर के हैं, but you have been able to buy that. We have to say thank you. Okay, because it is because of Lakshmi ji, it is not because of us. So it's like that. So today is the day. 100 blessings only for Lakshmi ji. ये हमारा आज उनके लिए गिफ्ट और ग्रैटिट्यूड और रिटर्न गिफ्ट है जो उन्होंने इतना ज्यादा जिंदगी भर हमको ब्लेस किया है. सो काउंट योर ब्लेसिंग्स के अलावा हमारे पास आज 100 ब्लेसिंग्स लिखने का भी टास्क है. जरूरी नहीं है कि आप एक जगह बैठ के एक ही टाइम पे लिखो. अगर आपका बहुत व्यस्त दिन है और आप दिवाली पे जरूरत से ज्यादा बिजी रहते हो तो इसको ब्रेक कर देना. कभी 10 लिख लो, कभी 20 लिख लो. ऐसे कर करके रात में 12 बजे के पहले 100 कंप्लीट कर लेना. बट डोंट टैक्स योरसेल्फ. अगर आपको लग रहा है कि बहुत टैक्सिंग लग रहा है तो आप 21 भी लिखोगे तो उसमें बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करके लिख लेना. डज आई डोंट वांट टू बर्डन यू ऑन दिस डे व्हेन यू आर वेरी बिजी. 21 तो बनता है ना हमारा, मतलब इतना हमने सुख भोगे हैं लक्ष्मी जी के, आई थिंक इतना तो हमारा बनता है. तो 21 लिख लेना. डजंट मैटर. इट्स अबाउट ग्रैटिट्यूड, इट्स नॉट अबाउट द नंबर. बट इफ यू कैन राइट 100, नथिंग लाइक दैट. Because 10 is the number of new beginnings. And today is Amavasya और कल से न्यू मून का वो शुरू होगा ना. So it's like we want to start with a lot of gratitude. So 10 to the power of 10 100 होता है, इसलिए मैंने 100 बोला है. So 10 is the number of new beginnings always. इसलिए तो हम count my blessings में 10 लिखते हैं. Because 10 connotates the number of new beginnings. And incidentally, tomorrow is new beginning for us. Tomorrow also happens to be the day जब हम अपने dreams पे work करेंगे. Magically make your dreams come true वाला chapter है कल हमारा. तो हम एक न्यू मून की शुरुआत के साथ एक नए सपने, एक नए डिजायर्स के साथ भी हम कल शुरू करेंगे. कल हमारा चैप्टर भी बहुत ब्यूटीफुल है, उतना ही ब्यूटीफुल है वैसे जितना आज का भी तो बहुत है. सो वी विल राइट 10 to the power of 10 100. दैट्स व्हाई आई सेड 100, बट 21 वर्क्स इक्वली. ओके, डजंट मैटर. फिर बस आज की प्रैक्टिस आई थिंक मैंने समझा ही दी है. 3 लोग हैं जिनको आपको आउट लाउड बोलना है एज इफ वो आपके सामने बैठे हैं और उनको खूब सारा ग्रैटिट्यूड देना है. रीजन बता के कि क्या रीजन है और कैसे उन्होंने आपकी जिंदगी बदली, ये रीजन बता के हमको उन 3 लोगों को एड्रेस करना है. और उसके बाद रात में मैजिक रॉक प्रैक्टिस. आई नो आज बहुत थक जाएंगे, दिवाली का दिन है, लोग मिलने आते जाते रहते हैं, लेकिन मैजिक रॉक प्रैक्टिस करना मत भूलना. ठीक है, बहुत जरूरी है. So yes, that is it for today. Then today magic book. Now we go to the other book, which is Hero. And I request Jyoti to read it for us. So bliss leads to bliss. Good morning, ma'am. Good morning. Bliss leads to bliss. There is an irresistible and powerful quality that radiates from you when you are in bliss and doing what you love, and that powerful quality draws more bliss to you. Even though you might not be able to see your dream yet, when you are in bliss, you are on the very path that will lead you to it. Yeah, bliss means satisfied, content. That I'm content with whatever I have in my life. As I'm sitting here, I'm content. Body है, सांसें चल रही हैं, health ठीक ठाक है, अच्छी है, ठीक है, surroundings ठीक हैं, घर है रहने के लिए, वाईफाई है, लैपटॉप है सामने, अच्छी अच्छी टीचिंग्स हैं, सारे रास्ते हैं, हमेशा हाथ में कैंडल रहती है, मतलब रोशनी रहती है हमेशा. कभी ऐसा नहीं होता कि बत्ती बुझ रही है ना. दोबारा अब हमने अपने आप को ही लाइट करना सीख लिया है. इतनी पावरफुल बुक्स हैं, तो हमारे गाइडिंग लाइट्स ये किताबें भी हैं जो हमको रास्ता दिखाती हैं आगे चलने का. आज सच कोई दिक्कत नहीं है ना. वरीज जब होती है तो या तो पास्ट की होती है जो ऑलरेडी बीत चुका है, जिसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, एंड वरीज हो सकती है अबाउट द फ्यूचर जो अभी आया भी नहीं है, जो आप अभी क्रिएट कर रहे हो. सो दिस मोमेंट वेयर यू आर नाउ इन योर लाइफ इज क्रिएटिंग योर टुमारो, योर नेक्स्ट मोमेंट, एंड द नेक्स्ट मोमेंट विल क्रिएट द नेक्स्ट मोमेंट. सो दिस मोमेंट, इफ यू डन अ लॉट ऑफ like you've been in your lowest this thing, then the next moment also becomes like that. So because we are magnets, so the moment हमारी जिस फ्रीक्वेंसी पे अभी हमें, अगर लो फ्रीक्वेंसी पे है, विक्टिमहुड में है, विक्टिमहुड में तो हमको रहना नहीं है. देखो विक्टिमहुड में अगर कोई भी रहेगा ना, प्लीज मेरी शक्ल याद कर लेना एक बार कि हम विक्टिम्स हैं, गॉड हमारे साथ ऐसा. नो, यू आर द सुपर पावर.
अगर रोज सुबह उठ के अगर हम ये पढ़ते हैं तो ये कभी मत भूलना, none of you, whether you're all on the YouTube or whether you're, none of you are victims. Okay, so I was seeing yesterday there were 5.4 thousand people who had heard a video yesterday, जो कल वाला हमारा सेशन था मैजिक मॉर्निंग. Okay, और there were 5.4 thousand likes. So which जब तक मैंने देखा था तब तक last, that means that those people who are listening every day to all of us share and about these chapters, none of you are victims henceforth. Okay, हमेशा be that superpower, that superman, whatever. ऐसे हमने मजाक में बचपन में बोला I'm not a superwoman and I'm not a superman, but all of us are superwoman and superman because universe's powers are flowing through us and to us and through us. So we are Superman and Superwoman. Okay, always be in that mode that I can turn around any situation no matter what to the best degree possible that I can hardly even imagine. That's why we've learned about dream big. Okay, so Savinder auntie is going to share a poem about it. उन्होंने कल मुझे बताया कि उन्होंने 2019 में लिखी थी, फिर उन्होंने उसको पंजाबी में लिखी थी तो ट्रांसलेट किया और मैंने उनको बोला कि वो आज हमको वो पोएम सुनाए. So वो हमको सुनाएंगी वो वाली पोएम. बट अपने ड्रीम्स को बढ़ा रखो because you are a superwoman and you are a superman. To all the girls and guys I'm addressing right now. Okay, that is what it is. So bliss means in the now, you are content, you are satisfied. Because आपके now से next moment create हो रहा है. अगर आप 580 frequency पे अभी हो, तो next moment आपका 600 frequency का create होगा. तो इसीलिए अपने आप को dip मत करो. ठीक है, अपने आप को victimhood में मत डालो. Because you're not. That's just a fake thing that you invite unnecessarily. So that, and the next moment will create the next moment. तभी तो हमारी जिंदगी अच्छी होती जा रही है बिकॉज हमें अपने मोमेंट्स को हमने अपनी पावर हर मोमेंट में डाली हुई है एंड दैट्स व्हाट इज इल्यूमिनेटिंग आवर लाइव्स है ना एंड फॉरएवर इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट सो दैट इज व्हाट हियर इट मेंशंस that we have an irresistible and a powerful quality that radiates from us when you are in a bliss and doing what you love. And that means high frequency में रहना and उससे हम more bliss invite करेंगे. जैसे हमने कहा wow, I'm awesome, I'm content, I'm satisfied, I'm so happy in where I am right now. That very moment 100 things the universe will start assembling कि वो आपकी जिंदगी में magnetize होके झट से आ जाए. That's how it works. Okay, इसमें लिखा हुआ है even though you might not be able to see, कभी कभी आपको पता नहीं है कि यूनिवर्स कैसे असेंबल कर रहा है, वो चीजें कैसे आ रही है, कहाँ आ रही है, क्या चीज शेक हो रही है, like all those things हमें कहाँ पता लगेगा. ह्यूमन रेल में थर्ड डायमेंशन में हमें ये सब नहीं पता लगता है, ये हमें फिफ्थ डायमेंशन में पता लगता है. जब हम मेडिटेशन लगातार करते रहते हैं तो हमेशा फिफ्थ डायमेंशन में होते हैं. दैट मीन्स फॉर्मलेसनेस में होते हैं, दैट हाईएस्ट एनर्जी. अभी हम 3 डायमेंशन में रहते हैं जनरली ह्यूमन बींग्स की तरह ना, ऐसे होते हैं, और हैप्पियर जोन में. तो लेकिन फिफ्थ डायमेंशन में धीरे धीरे हम जाते जाएंगे. कुछ लोगों को आपको इंट्यूशंस आते होंगे, कुछ लोगों को आपको पता लग जाता होगा कि somebody is in a problem, I need to call or something like that, तो that means आप फिफ्थ डायमेंशन के रेल में जाते रहते हो. So this is how it works. So it's हमको अपनी दिखेंगी नहीं कि यूनिवर्स किस तरह से ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है हम हमारी ड्रीम्स पूरी करने के लिए और क्या क्या. But then it really, the moment you are in the happy zone, content, chilled out, satisfied, okay, serene, I mean, it goes without saying this is how the law works, that the universe has started assembling and conjuring up things for us. और हमारी जिंदगी में अब ऐसे लोग, people, circumstances, situations ऐसी आएंगी जिसकी वजह से life is going to be a bliss and constantly we will keep inviting more and more bliss. Okay, so that is what. And इसमें लिखा हुआ है when you are in bliss, you are on the very path that will lead you to it, So that's why always try to work on yourself. जब sad भी होते हो, आप सिर्फ thank you की रट लगाते रहो, लिखते रहो, जब तक आप elevated emotion में नहीं आ जाओ. ठीक है, don't dwell in a negative. देखो negative situations तो आती है ना, but don't dwell in them. If you're dwelling in them, you're inviting that 1000 power more.
So we don't want to dwell in them. In that situation also हम मन में बोल रहे हैं thank you, thank you, thank you, thank you universe, thank you universe, thank you to the air that I'm alive, thank you that I'm breathing. And you will see that आपका इतना बड़ा magnanimity के साथ solution आएगा that you can hardly imagine that how has this exploded into my life. Wow. You know, too good to believe जिसको बोलते हैं, that is how life becomes. हाँ जी ज्योति, please continue. Yes, ma'am. Lane Beachley. Make the choice to do something that makes you feel good on a daily basis. How many people do that? How many people identify what makes them feel good and then commit that time to themselves on a daily basis? You are following your bliss when you make a decision to do something that makes you feel really good every day. It could be as simple as sitting in a park or a garden and relaxing with your feet up, or buying a cup of your favorite coffee and instead of drinking it on the run, sitting down, taking a breath, and just watching the world pass by. No matter how insignificant or small it might seem, each day make sure to do something that is your idea of bliss. Before you know it, you will be inspired with other blissful things you can do, and from just doing that one thing, you will soon have a hold of a thread that's going to you to your dreams and to a far better life. Yeah, so she says here that do small things that make you happy. Like for all of us, I don't know, maybe sitting on a balcony and having a cup of coffee, वो हमको बहुत satisfying moment लगता है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है going for a nice morning walk by yourself, वो अच्छा लगता है. कई लोगों के लिए it could be that you're listening to your AirPods और earphone लगा के अपना favorite music या audio book आप सुन रहे हो, वो आपको अच्छा लगता है. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं walk करती जा रही हूँ और मेरी audio book चल रही है. ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. I mean, yesterday one of my friends was so surprised that, you know, like I went to her house to give her Diwali and then I picked her up and we went to another friend's house जहाँ पे हमको lunch के लिए जाना था. तो जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी का push button दबाया, वैसे ही वो book play होने लग गई. तो कहती तू क्या सुनती है? मैंने कहा ये मैं हमेशा किताबें सुनती रहती हूँ but कभी म्यूजिक भी सुनती हूँ. अब मैं अपने घर से उसके घर तक गई थी तो मैंने ऑडियो बुक लगाई हुई थी. So डॉक्टर जो डिस्पेंजा की थी वो. So I love listening to him. तो वो चल रही थी तो कहती है कि मैंने कहा हाँ मतलब I love you know like reading audio books मेरे लिए जब से, इसलिए I'm so thankful to YouTube that पढ़ने का उस तरह से टाइम मिलता नहीं है इतना ज्यादा. तो फिर लेकिन अपने आप को मैं अपडेटेड एजुकेटेड रखती हूँ हमेशा. So she was so surprised. She said wow this is so inspiring. I said really? like it is like that. So बहुत अच्छा, वो अच्छा लगता है. फिर सुबह वॉक कर करके मुझे ऑडियो बुक सुनना बहुत अच्छा लगता है. फिर ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है. नई नई चीजें करना बहुत अच्छा लगता है. नए नए कुजीन्स को खाना अच्छा लगता है. इस तरह हम सबका कुछ ना कुछ वो होता होगा दैट ब्लिसफुल मोमेंट्स जो करते हैं. मुझे ग्रैटिट्यूड लिखना बहुत अच्छा लगता है. मुझे ग्रैटिट्यूड का मैं कुछ टारगेट बनाती हूँ कि आज मैं ये वाला ग्रैटिट्यूड लाइक यू नो से 180 टाइम्स लिखूंगी या कुछ ऐसा. मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. मुझे अपना वर्क बहुत अच्छा लगता है. मुझे ऑफिस जाना बहुत अच्छा लगता है. बहुत ब्लिसफुल है ऑफिस में बैठ के, जहाँ पे मेरा जो जोन है जहाँ मैं बैठ के काम करती हूँ वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. So this is how we have to think about things. You know, Abraham Hicks ने अपनी किताब में बोला है that make a list of all the things that you love to do and try to do them, you know, at least once on a daily basis. So जो इन्होंने बोला है यहाँ पे लेन बेचले ने कि मतलब कोशिश करो जितना ज्यादा, and it could be very insignificant, you know, like it could be just sitting in a park or a garden with your feet up. ठीक है, कोई कुछ भी सोच रहा है, does not matter. That is what it is, you know, like आपको वो बैठने में ब्लिस लग रहा है आप वो करो. या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो मतलब, और वहां पे आपने फेवरेट कप ऑफ कॉफी खरीदी है एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एंड वॉकिंग अराउंड विद योर कॉफी मग, आप वहां आराम से बैठे हो और लोगों को आते जाते देख रहे हो, सीइंग द वर्ल्ड गो हियर एंड देयर, वो आपका ब्लिस हो सकता है. तो बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती है. यू नो, दे डोंट हैव टू बी सम रॉकेट साइंस समथिंग, बट ट्राई एंड डू दैट मोर. जो भी आपका वो आइडिया ऑफ ब्लिस है, या आपको किसी कैफे जाना है, कॉफी पीते पीते आपको अपने ब्लेसिंग्स लिखने हैं, ग्रेटिट्यूड लिखना है, ठीक है, तो वो अपना डायरी लेके चले जाओ.
आपको दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा जाना पसंद है, बाहर जाना, मूवी देखना पसंद है, अच्छी सी नाइस मशी मशी रोमांटिक मूवीज देखना पसंद है, वो कर लो. सो वट एवर इट इज, ओके. सो दैट इज वॉट, इफ यू लव टू एंजॉय द फूड यू डू दैट. मुझे कल पता लगा कि मैं खाना खाना कितना एंजॉय करती हूँ. मतलब खाना तो खाती हूँ बट ऐसे, कल जब अपनी फ्रेंड के यहाँ गए थे लंच करने के लिए, सो आई बेली, मैं वही 2 चम्मच राइस खाती हूँ. मतलब ऑफ कोर्स द प्लेटर ऑफ द टेबल वाज फुल ऑफ फूड एंड आई वाज ईटिंग माय फूड एंड मैंने बस 2 चम्मच फ्राइड राइस लिए. देयर वाज सम सोया चाप शी हैड मेड, सो मैंने वो 2 सोया चाप ली थी. थोड़ा छोले बनाए हुए थे, आई टुक दैट. इट वाज अ नाइस वेजिटेरियन मील एंड शी हैड मेड पास्ता सैलेड, बिकॉज उसके हाथ का पास्ता सैलेड मुझे एक बार मैंने कभी खाया था एंड आई वाज रेविंग अबाउट इट. और जब सबका हो गया तो मैंने कहा ये बर्तन खाली करके मैं आई एम ईटिंग ऑल ऑफ दिस, किसी और को खाना है कि नहीं. सो शी न्यू दैट आई लव्ड इट. तो उसने स्पेशली कल बहुत सारा बनाया था तो मैं उसको खा रही थी और खूब सब्जियां डाल के दैट पास्ता सैलेड में मजा आ गया था खा के. सो आई वाज ईटिंग ऑल ऑफ दैट. और वो लिटरली 2 टेबलस्पून राइस भी नहीं थे जो मैंने लिए थे, बिकॉज देयर वर सो मेनी थिंग्स इन द प्लेट एंड आई थॉट, एंड एवरीबडी एट इट, फिनिश्ड इट ऑफ. सब खा पी के उठने भी लग जाए, मैं वो उतना सा खाना 45 मिनट्स तक खा रही थी. सो मतलब फिर मैंने देखा, माय गॉड, आई लव ईटिंग, आई वाज चेरिशिंग दैट फूड लाइक एवरी बाइट. जैसे रोंडा बर्न बोलती है ना, दैट फील इट एक्सप्लोड इन योर माउथ. एक तो होता है ना घट 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 खत्म करके काम निपट गया, इट्स नॉट लाइक दैट. सो मुझे वो भी पता लगा कि वाओ, मतलब इतना ब्लिसफुल मेरा मोमेंट था. 45 मिनट में वो 2 चम्मच राइस ही खा रही थी, फिर वो पास्ता खा रही थी, फिर वो जो उसने इतने टेस्टी छोले बनाए थे, आई वाज ईटिंग दैट. तो सब मैंने थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा लिया हुआ था. उसके बाद इतना पेट भर गया और फिर वो इतना ब्यूटीफुल डेजर्ट लेके आए विच वाज लाइक वो जो चिया सीड वाला जो होता है, विदाउट ओट्स वाला जो पुडिंग होता है. oh god, it was like so terrific, phenomenal. मजा आ गया अगर खाना खा के. एंड इट वाज सो लाइट, और क्योंकि रुक रुक के आराम से खा रही थी तो वो बड़ा आराम से डिजेस्ट भी हो गया जल्दी से. एंड देन आई वाज बैक टू फीलिंग हंग्री बाय 5:30. सो मतलब दैट इज establishing a relationship with food also. The food also loves to go inside my body because it knows it's cherishing, it's cherished by me, isn't it? So that's why वो मेरी, मुझे लगा कि वो ब्लिस है. इस तरह जो भी हमारी ब्लिस होती है, मैं जो थाई कप ऑफ चाय पीती हूँ अपने घर में शाम को, जब मैं छुट्टी वाले दिन पे थाई टी पीती हूँ, वो मुझे बड़ा ब्लिसफुल लगता है. बड़ा बड़ा मजा आता है. मूवीज देखना, ओ गॉड, मुझे नेटफ्लिक्स पे अच्छी अच्छी बायोग्राफीज देखना या डॉक्यू सीरीज देखना, मुझे बड़ा मजा आता है वो सब करने में. सो डू दोज थिंग्स मोर. दिस इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू टेल अस. और हम सबका अलग अलग इकिगाई हो सकता है, एक अलग अलग थिंग्स दैट makes us blissful, इस तरह से. So that is, I think we'll have to end. Jyoti, thank you so much for reading and a happy Diwali to all of you again. Thank you so much, ma'am. Thank you. But this is a very powerful thing to do, है ना? Instead of fretting and fuming about small little things, you do the things that make us more blissful, more chilled out, more happy, because जो हमारी अभी की frequency वही हमारी next moment की frequency होगी, and everything will start going wrong for us. This is how it works. So remember that. Instead, transform it. Change the frequency right now. यही तो है ना, human beings have got the ability to choose your frequency. We have that, that kind of a life where we can constantly keep choose such a good frequency that इतना छप्पर फाड़ के हमारे पास प्यार, happiness, abundance, prosperity, properties, पैसा, इज्जत, opportunities, promotions, डील्स, प्रोजेक्ट्स, ये सब हमारी जिंदगी में फ्लो होता जाए, है ना? वो उस फ्रीक्वेंसी में रखना है. So that's how life goes on, and that's how our life has to go on, because, well, we all don't have a choice. Okay, we are the creators of our life, the designers, the architects of our life, the painter of the painting on an empty canvas that we have made, we have sketched, है ना? इस तरह से. सो जब हम सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग बुक कर रहे थे, जो हमारा ग्रुप का नाम भी है, हमारे ग्रुप का नाम बेंटिनो मैसारी की जो बुक है, क्योंकि दैट बुक वी हैड रेड इनिशियली फॉर consecutive 4 times. ओके, सो ये मैजिक तो हम कर ही रहे थे एज द फर्स्ट बुक इनिशियली, जब हमने सेशंस लेना शुरू किया था 3 years ago. सो हम सेकेंड बुक लगातार सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग कर रहे थे. वो नाम ही इतना अच्छा है, सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग, क्योंकि हम उस व्हाट्सएप ग्रुप से अटैच्ड हैं, तो हमारी जिंदगी में वो धीरे धीरे इनग्रेन होता जा रहा है. बिकॉज जिस चीज से आप अटैच रहते हो बहुत टाइम के लिए, वो आपकी लाइफ बन जाती है. तो सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग हमारी लाइफ बनती जा रही है. आपने देखा है कितने लोग ऐसे सेशंस में अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं जो ना यूट्यूब पे सुनते हैं ना सुबह, सिर्फ ग्रुप में रहने की वजह से उनकी लाइफ में दैट लिटिल शिफ्ट ही आएगा ना, ज्यादा शिफ्ट तो नहीं आ सकता,
ठीक है। लेकिन अगर हम सुपर एक्सीलेरेटेड लिविंग एक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं, हमारी लाइफ में मॉन्यूमेंटल चेंजेस होंगे, बिकॉज इस ग्रुप का नाम ही वो है, सुपर एक्सीलरेशन। सो वो लिविंग अब हमारी वैसी ही होती जाएगी। सो इट्स ऑल्सो बिकॉज वी आर अटैच्ड टू दैट ग्रुप, दैट ग्रुप हैज बिकम आवर आइडेंटिटी, isn't it? We think about it all 24/7. We might be doing different things. हम ट्रैफिक में होते हैं तभी भी हम ग्रुप के पार्ट हैं, ठीक है, और उस ग्रुप के एक्टिव पार्ट हैं, if we've been attending the sessions and doing the study together, ठीक है। फिर उसके बाद आप ऑफिस में होते हो, वहां पे भी यू आर अ मेंबर, यू गो देयर एज अ मेंबर ऑफ सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग। तो आपकी जिंदगी में वो आता जा रहा है सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग, जो बेंटिनो मैसारो की बुक है। तो वो किताबें एज सच उनकी है नहीं, उनके लेक्चर्स कंपाइल होते हैं, तो वो भी उनके लेक्चर्स हैं कंपाइल होके, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म्स में है। लेकिन बड़ा मजा आया था हमको किताब करना, हम दोबारा करेंगे नाउ दैट वी आर अ बिग फैमिली एंड वी आर लाइव ऑन यूट्यूब ऑल्सो। तो वी आर अवेलेबल ग्लोबली टू एवरीबडी एंड वी लव एवरीवन अराउंड द ग्लोब. For all of you YouTube people, we love you, and be consistent. We'll try to bring the second book different. Let's do super accelerated living again once we are done with this one, Hero के बाद, ठीक है। बिकॉज बेंटिनो मैसारो जिस ग्रुप के हम पार्ट है, उनके बारे में हमको जानना, उनके बारे में हमको पढ़ना बहुत जरूरी होता है ना। सो हम वो सेकेंड बुक अब वो करेंगे, सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग। तो इस तरह से हमारी जिंदगी चेंज होती जाएगी, इसके पार्ट रह के कैसे हम हाई फ्रीक्वेंसी में रख रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट. So yeah, that is how life is about.